کراچی سے اہم خبر شامل کریں گے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں 2 بچوں کی ہلاکت کے بعد لواحقین کا احتجاج۔ 4 دن سے ستائے ہوئے مریضوں اور تیمارداروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہڑتالی ڈاکٹرز کے احتجاجی کیمپ پر تیمارداروں نے دھاوا بول دیا۔ لوگوں کو غصے میں دیکھ کر ڈاکٹرز نے احتجاجی کیمپ ختم کر دیا۔ مظاہرین نے NICH روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ سندھ سرکار مریضوں پر رحم کھائے۔ ینگ ڈاکٹرز نے مذاکرات کر کے ہڑتال ختم کی تاکہ درد سے تڑپتے مریضوں کو دوا مل سکے۔ ڈاکٹرز نے لوگوں کو غصے میں دیکھ کر احتجاجی کیمپ ختم کر دیا۔ سندھ میں مسیحاؤں کی جانب سے مسلسل ڈھٹائی کا اظہار۔ چوتھے روز بھی مسیحائی سے کر دیا صاف انکار۔ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال سے پریشان مریضوں کے ورثاء کا صبر جواب دے گیا۔ NICH سے ہڑتالی ڈاکٹرز کا احتجاجی کیمپ ختم کرانے کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ ینگ ڈاکٹرز نے مظاہرین کے غصے سے ڈر کر ہڑتالی کیمپ عارضی طور پر ختم کر دیا۔ دوسری جانب مریضوں کی حالت زار پر سندھ سرکار کو ترس آیا۔ نہ ہی صوبے بھر میں ینگ ڈاکٹرز ہٹ دھرمی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ تنخواہوں میں اضافے کے لیے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث آج بھی سندھ میں مریضوں کا کڑا امتحان جاری ہے۔ بے بس عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی بھٹو کا انتظار کرنے لگے۔ NICH میں 2 بچوں کی ہلاکت کے بعد لواحقین کا احتجاج۔ NICH کی سیکیورٹی نے صورتحال کو کنٹرول میں لے لیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹرز فوری طور پر OPD بحال کرے۔ دائرہ امراض قلب میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ نمائندہ نیوز عاصم اشرف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی آپ بتائیے گا ڈیٹیلز کیا ہیں ابھی؟ بالکل دیکھیں جی، قومی ادارہ برائے صحت اطفال میں موجود ہوں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم جب جناح اسپتال میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کا احتجاج کور کر رہے تھے تو یہ اطلاع سامنے آئی کہ جو بچوں کا وارڈ ہے یعنی کہ قومی ادارہ برائے صحت اطفال، وہاں پر جو ہے مبینہ طور پر 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں جن کے لواحقین جو ہے وہ غصے میں سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹرز کے خلاف نعرے بازی کی، توڑ پھوڑ کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ موقع پہ موجود پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ نہ صرف روڈ کو کھلوا دیا بلکہ مظاہرین کو بھی جو ہے وہ سمجھا بجھا کر دوبارہ اسپتال کے اندر بھیجنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو ینگ ڈاکٹرز کا موقف سامنے آیا، ان کا کہنا ہے کہ جو 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ اس ہڑتال سے یا پھر جو ہے وہ OPD کی بندش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمرجنسی جو ہے وہ بدستور کام کر رہی ہے۔ اس میں سے جو پہلوان گوٹ سے لایا ہوا بچہ تھا رضوان نامی، وہ پہلے سے جو ہے وہ کافی بیمار تھا، وہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں ہی جو ہے وہ زیر علاج تھا اور اس کی جو ہے وہ جان کی بازی ہارا ہے۔ لیکن صورتحال اس حد تک بگڑی کہ جب مریضوں کے لواحقین نے ڈاکٹرز کے کیمپ جب ختم نہیں ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹرز پہ دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ ان کے جو احتجاجی کیمپ پر رکھی ہوئی کرسیاں تھیں ان کو اٹھا کر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی، لیکن فوری طور پر موقع پر جو ہے وہ NICH کی انتظامیہ اور سیکیورٹی گارڈز نے پہنچ کر جو ہے وہ معاملے کو سلجھایا اور اس وقت جو ہے وہ دونوں جو باڈیز ہیں بچوں کی وہ جو ہے وہ ان کے لواحقین لے کر روانہ ہو چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد جو NICH کے ڈائریکٹر ہیں وہ تمام تر صورتحال سے جو ہے وہ میڈیا کو آگاہ کریں گے، لیکن ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ اب بھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ جو ہے وہ یہ ہڑتال کی وجہ سے ہوا ہے۔ لواحقین کا جو ہے وہ شور شرابہ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے اور ہماری ہڑتال جو ہے وہ ان کی اسی طرح جاری رہے گی۔ اس تمام تر معاملے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس پر ابھی تک کوئی ایکشن لیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ مبینہ طور پہ اگر 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں تو وزیر صحت کا جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بیان آنا چاہیے تھا، سیکرٹری ہیلتھ کا کوئی بیان آنا چاہیے تھا، لیکن صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ آج 4تھا روز ہے اور ڈاکٹرز یہ بھی اندیہ دے چکے ہیں کہ پیر سے وہ پولیو مہم کے بائیکاٹ پر بھی جا سکتے ہیں اور OPDs کے جو ٹینٹ لگا کر جو ہے وہ ایمرجنسی اور دیگر شعبوں کے باہر جو ہے وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم OPDs شروع کر دیں گے، لیکن اپنے کمروں میں جا کر اپنے وارڈز میں جا کر جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے۔ اس طرح مریض آج جو ہے وہ ایک واقعہ سامنے آ گیا ہے کہ مریضوں کے جو لواحقین ہیں وہ غصے میں ہیں، وہ بپھر رہے ہیں، لیکن اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں کم و بیش یہی صورتحال ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، بزرگ سسک رہے ہیں، لیکن نہ تو ڈاکٹرز اپنے رویے میں لچک دکھانے کو تیار ہیں، نہ ہی جو ہے وہ سندھ حکومت اپنے ان کے مطالبات ماننے کو تیار ہے۔ مریضوں کا اور شہریوں کا جو ہے وہ ایک سوال ہے کہ آخر یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ کب تک یہ معاملہ جو ہے یہ چلے گا، کیونکہ دونوں جانب سے ہی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ شکریہ آپ کا۔ سندھ بھر کی طرح ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گھوٹکی میں بھی ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث مریض رول کر رہ گئے ہیں۔ ہاسپٹل کی OPDs بند ہیں، دور دراز سے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، غازی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غازی وزیر بتائیے گا کیا مشکلات درپیش ہے وہاں کے مریضوں کو؟
جی بالکل، سندھ بھر کی طرح گھوٹکی میں بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. آج ان کی جو ہڑتال ہے، وہ بائیکاٹ ہے، وہ 4ویں روز میں جاری ہے، جس سے دور دراز سے آنے والے مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ ہمارے وہی مطالبات ہیں جو پہلے ہم نے 28 جنوری کو اسٹرائک کی تھی اور گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نوٹیفیکیشن نکالیں گے 1 ہفتے میں. ہم نے پھر بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن 15 دن گزرنے کے باوجود بھی ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے. اس لیے ہم 4تھے روز بھی ابھی اسٹرائک پہ ہیں اور مطالبات وہی ہیں کہ ہمارے پروموشن کیے جائیں، ٹائم اسکیل دیا جائے اور ہماری تنخواہیں پنجاب کے برابر کی جائیں، جو کہ منسٹر نے وعدہ کیا ہوا ہے. جی بالکل، آپ نے ڈاکٹرز کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ ہماری دوسرے صوبوں کی جس طرح تنخواہیں ہیں، جو ٹائم اسکیل ہے، اس طرح کیا جائے، نہیں تو یہ احتجاج جو ہے وسیع کر دیا جائے گا. 4ویں روز میں یہ احتجاج جاری ہے، جس سے دور دراز سے آنے والے مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے. ایک طرف ڈاکٹرز جو ہیں وہ سندھ حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، دوسری طرف جو ہسپتالوں میں آنے والے مریض ہیں وہ ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج پہ ہیں. بہت شکریہ غازی وسیر. سندھ سے ایک اور افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. تھرپارکر میں غذائی قلت اور وبائی امراض کے باعث اموات کا سلسلہ جاری ہے. سول ہاسپٹل مٹھی میں مزید 5 بچے دم توڑ گئے ہیں. رواں ماہ جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 32 اور رواں سال 97 ہو گئی ہے. اسی پر بات کریں گے اعجاز جان سے. اعجاز، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ مٹی میں 5 بچے جان باک ہو چکے ہیں. اس ماہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 32 ہو گئی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھر کے اسپتالوں میں سہولت دینے سے ناکام ہو گئی ہے. ڈاکٹر تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج جو کر رہے ہیں، لیکن جو ڈسپینسریز میں ڈاکٹر مقرر کیے گئے وہ اکثر طور پر غیر حاضر رہتے ہیں، جس پہ کمشنر میر پخاس نے روزانہ کی بنیاد پر جو رپورٹ دینے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب جو تعلقہ اسپتالوں ڈسپینسریز میں ادویات کی کمی برقرار ہے. تعلقہ اسپتال میں ادویات کی جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹینڈر کرتے ہیں تو تقریباً 1 ماہ 2 ماہ لگ جاتے ہیں ادویات خریدنے میں. جی بہت بہت شکریہ اعجاز جان، اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں قصور کا، جہاں نورپور ڈوگرہ میں خستہ بیوی اور ایک بچی جاں بحق ہو گئی. 3 بچے زخمی ہیں. زخمی بچوں اور لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے قصور سے، جہاں نورپور ڈوگرہ میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 4 بچے اور میاں بیوی ملبے تلے دب گئے. ملبے تلے دب کر میاں بیوی اور ایک بچی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 بچے زخمی ہیں. زخمی بچوں اور لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شہروز زیب سے. شہروز، بتائیے گا اس واقعے کے بارے میں. نورپور ڈوگرہ ہے، جہاں پہ حالیہ بارش کے باعث خستہ حالی کے باعث چھت گر گئی، جس کے ملبے تلے آ کر 4 افراد اور میاں بیوی تھے. جب اطلاع ریسکیو ٹیموں کو دی گئی، ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آپریشن کیا. 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ملبے تلے سے 3 بچوں اور میاں بیوی کو نکال لیا گیا. انتہائی افسوس سے بتاتا ہوں کہ جس ملبے تلے آ کر 2 میاں بیوی اور ایک بچی جاں بحق ہو گئی، جن کو ریسکیو ٹیموں نے انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جس میں زخمی افراد کا طبی امداد جاری ہے. اور خبر جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی خبر سن کر علاقوں میں کوہرا مچ گیا ہے. اس وقت یہاں پر دکھ کا عالم ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے. جی بہت بہت شکریہ شہروز زیب آپ کا. لاہور کے جناح اسپتال میں نواز شریف کا دوسرے روز بھی علاج جاری. میاں نواز شریف کے شوگر اور خون کے ٹیسٹ اور ایکوکارڈیوگرافی کی جائے گی. ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر عاصم حمید کا کہنا ہے کہ امراض قلب کے پروفیسر زبیر اکرم نے نواز شریف کا طبی معائنہ کیا ہے اور نواز شریف پرنسپل آفس سے کمرے میں مطمئن ہے. تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد میڈیکل بورڈ نواز شریف کو ڈسچارج یا داخل کرنے کا فیصلہ کرے گا. میڈیکل بورڈ ٹیسٹ رپورٹ کے بعد نواز شریف کی صحت سے بھی آگاہ کرے گا. ایم ایس ڈاکٹر عاصم حمید کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز نواز شریف کو تھکاوٹ کے باعث کمر میں درد ہوا تھا، اب ان کا درد ٹھیک ہے.
नवाज शरीफ के हवाले से अभी तक आपको अपडेट करें। कल से जिन्ना अस्पताल में उनके इलाज के हवाले से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स आने पर भी ही फैसला किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड का ये कहना है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए या उनको दाखिल किया जाए। कल कुछ थकावट के बायस जो कमर में दर्द था वो आज ठीक है। अब दूसरे रोज़ भी आज उनका इलाज जारी है। अमराज़ क़ल्ब के प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया है। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी वालिद से मिलने जिला अस्पताल लाहौर पहुंची हैं। मरियम नवाज अपने वालिद की इयादत करेंगी। दूसरी जानिब प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आरिफ तजम्मुल का कहना है कि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज को बोर्ड में शामिल नहीं कर सकते। डॉक्टर अदनान से मशवरा ज़रूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तमाम सहूलियात से मुतमईन है। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी वालिद से मिलने के लिए जिन्ना अस्पताल पहुँच है। मरियम नवाज अपने वालिद की इयादत करेंगी। दूसरी जानिब प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आरिफ तजम्मुल का कहना है कि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज को बोर्ड में शामिल नहीं किया जा सकता। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन अलवी से। मोहसिन, बताइएगा इस बारे में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो कि जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज उनकी आदत के लिए अभी कुछ ही देर पहले मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची हैं, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंजाब शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेडिकल बोर्ड जो है उनका मुआयना कर रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म का। आज मुमकिन तौर पर उनकी एकोकार्डियोग्राफी की जाएगी, जिसके बाद उनके टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल बोर्ड हतमी सिफारिशात तय करेगा उनके आइंदा के इलाज के हवाले से। जबकि मेडिकल बोर्ड के सरबराह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का ये कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती मुआलिज से मशवरा ज़रूर किया जाएगा, उनके इलाज मुआलजे के हवाले से, उनके साथ रिपोर्ट्स के हवाले से मशवरा किया जाएगा, लेकिन मेडिकल बोर्ड का उनको हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इस तरह मशवरा कर सकते हैं। मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया है उसके अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती मुआलिज को उनका ये कहना था कि हम शामिल नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जिन्ना अस्पताल लाहौर में पहुंचने पर मरियम नवाज ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के बावजूद जिस तरह अस्पताल में लाया गया उस पर तशवीश है। बोर्ड की सिफारिशात थी कि नवाज शरीफ को कार्डियक अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन यहाँ पर लाना बायस तशवीश है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के बरखिलाफ जिन्ना अस्पताल लाया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या नवाज शरीफ को PIC ले जाना चाहिए था? जी, नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल की बजाय PIC ले जाना चाहिए था। यहाँ पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सऊदी इमदाद और रिहाई के हवाले से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मंसूब शाया होने वाला बयान बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मंसूब करके बिला तस्दीक और बगैर किसी मुस्तनद हवाले के बयान शाया और नशर करना नामुनासिब और काबिल अफसोस है। उन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की कि तस्दीक के बगैर ऐसी खबर शाया या नशर ना की जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से तर्जुमान की जारी करदा खबर ही मुसद्दिका तसव्वुर होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत हुई। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी कर दी। ख्वाजा बरादरान को बख्तरबंद गाड़ी में कैंप जेल से एहतसाब अदालत लाया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बख्तरबंद गाड़ी में झटके लगने से मेरी टांग के दर्द में इजाफा हो गया है। शेख जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 4 मार्च तक तोसी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की। बताया जाए रेफरेंस कब तक फाइल किया जा रहा है। अदालत का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा 90 रोज पूरे होने तक पैरागॉन का रेफरेंस पेश कर दिया जाएगा। अदालत का ख्वाजा बरादरान के खिलाफ हतमी रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म। जल्दी काम किया करो। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुझे बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया जो 60 साल पुरानी लग रही थी। बख्तरबंद गाड़ी में झटके लगने से मेरी टांग की दर्द में इजाफा हो गया। होम डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस इसकी जिम्मेदार है। 60 साल पुरानी बख्तरबंद गाड़ी भेजी है जिसमें झटके लगने से मेरे टांग के दर्द में इजाफा हुआ है। ये इनका रवैया है और मैं समझता हूँ कि ये लाहौर पुलिस की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उसके जिम्मेदार हैं या होम डिपार्टमेंट, उन्होंने अपना मुंह काला किया है। ख्वाजा बरादरान की पेशी पर नून लीग के कारकुनान ने नारे भी लगाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ जैनुल आबिदीन, न्यू न्यूज़, लाहौर।
आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली के निर्खों में 1 रुपए 93 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। मरे को मारे शाह मदार। सार्फिन गैस के बेतहाशा बिल्स के झटके से अभी बाहर नहीं निकले कि बिजली की कीमतों में इजाफे की खबर सुना दी गई। CPPA ने जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दी। 1 रुपए 93 पैसे फी यूनिट इजाफे की इस्तदा की गई है। नेपरा दरखास्त पर 20 फरवरी को समाअत करेगा। फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला होगा। उधर सिंध हाईकोर्ट ने साना बल्दिया टाउन और रियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। GIT रिपोर्ट्स 23 फरवरी को इन कैमरा सेशन में पेश करने की हिदायत की गई है। अदालत ने साना बल्दिया टाउन, उज़ैर बलोच और निसार मुराई की GIT मंजर-ए-आम पर लाने के लिए अली जैदी की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि साना बल्दिया टाउन, उज़ैर बलोच और निसार मुराई की GIT अवाम से छुपाई गई है। साना बल्दिया फैक्ट्री में 250 से ज़ायद अमवात हुई मगर GIT रिपोर्ट पब्लिक न हुई। एडवोकेट जलाल सिंह सलमान तालिबुद्दीन को हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। निसार मुराई GIT का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहां से लाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि जो सर्बमोहर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश की है वो हाई कोर्ट में भी पेश कर दे। साना बल्दिया टाउन और लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच की GIT मुशाहिदा हम भी तो करें। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में इरशाद राजानी कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान रहीम शाह और इंस्पेक्टर रियाज आमिर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान को पुलिस और रेंजर्स की सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा कर दी, जबकि सरकारी वकील ने दहशतगर्दी के केस में पेश करने की इस्तदा की। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जुनैद शाह से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में इरशाद रंझानी कत्ल केस की समाअत की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान रहीम शाह और इंस्पेक्टर रियाज को कत्ल बिल सबब के मुकदमे में पेश किया गया, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दरकार नहीं है, मुल्जिमान को जेल भेजा जाए। ताहम इस दौरान सरकारी वकील की जानिब से एतराज़ किया गया कि मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। मुल्जिमान को दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे में भी अदालत में पेश किया जाए। ताहम अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कुछ देर बाद जो है वो सुनाए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे सानेहा साहिवाल की। तमाम फरीकैन 18 फरवरी को सीनियर सिविल जज शकील गुराया अदालत में पेश हों। सानेहा साहिवाल केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सानेहा साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सीनियर सिविल जज शकील गुराया को मुकर्रर किया था। शकील गुराया 1 माह में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेंगे। कराची का जोड़ा इस्लामाबाद में पकड़ा गया। मियां बीवी ने मिलकर दर्जनों शहरियों को लूटा। मुल्जिमान के खिलाफ कई शहरों में 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद उवैस। इस्लामाबाद थाना शालीमार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमा सोफिया सिद्दीकी और शेख अब्दुल रऊफ पर कराची में 50, लाहौर में 15 और दीगर शहरों में मुकदमात दर्ज हैं। शालीमार पुलिस ने F11 गोल्डन हाइट्स के करीब कार्रवाई करके दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस जराये का कहना है मुल्जिमा और मुल्जिम दोनों मियां बीवी हैं और मिलकर नौसरबाजी करते थे। दोनों मियां बीवी के खिलाफ नौसरबाजी समेत दीगर संगीन नौयत के दफात के मुकदमात में दर्ज हैं। इस्लामाबाद में वारदातें करने पर मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश भी जारी है। अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। उकाड़ा में लड़की की लाश बरामद। थाना रावी की हुदूद में सोबिया बीबी कल शाम से लापता थी। सोब लाश घर के सामने खाली इहाते से मिली। पुलिस जराये के मुताबिक गले पर तेज धार आला मारकर कत्ल किया गया। रेनाला कुर्द में थाना सदर के इलाके में म्यूजिकल ग्रुप लूट गया। मुसल्लह मुल्जिमान 2 लाख नकदी, तलाई जेवरात और कीमती मोबाइल लूट कर फरार हो गए। म्यूजिकल ग्रुप का ताल्लुक लोधरा से है। शादी फंक्शन में बुलाकर लूट मार कर आई गई। म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया। कामुकी में थाना सिटी के इलाके सब्जी मंडी रोड पर बच्चों की लड़ाई में बड़ों का तसादुम। एक दूसरे पर ईंटों और लाठियों की बरसात। अंधाधुंध फायरिंग भी कर दी। 6 अफराद जख्मी, THQ अस्पताल मुंतकिल।
बन्नू के थाना मिरियान के इलाके में 5 किलो वजनी बारूदी मवाद बरामद। बीडी स्क्वाड ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने हमीदुल्लाह नामी शहरी के घर के साथ बारूदी मवाद नस्ब किया। अब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ की इयादत के लिए जिन्ना अस्पताल लाहौर पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ की जिन्ना अस्पताल आमद पर कारकुनों की जानिब से नारेबाजी की गई। शहबाज शरीफ जमानत पर रिहाई के बाद इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे और अपनी डिफेंस की रिहाइशगाह में आराम के बाद अब अपने बड़े भाई की इयादत के लिए जिन्ना अस्पताल लाहौर पहुंचे। ये मनाजिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह पाक नवाज शरीफ को सेहत कामला अता फरमाए। मियाँ साहब का मुकम्मल इलाज होना चाहिए, अल्लाह पाक करम करे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ की इयादत के लिए जिन्ना अस्पताल लाहौर पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ की जिन्ना अस्पताल आमद पर कारकुनों की जानिब से नारेबाजी की गई। शहबाज शरीफ जमानत पर रिहाई के बाद इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे और अपनी डिफेंस में रिहाइशगाह में आराम के बाद अपने बड़े भाई की इयादत के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंचे हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में बम धमाका। धमाके में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और अभी तक किसी दहशतगर्द गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफगान सूबे गजनी में बम धमाका, एक शख्स हलाक, 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अभी तक किसी दहशतगर्द गिरोह की जानिब से इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आम 2019 के बाद पाक बहरिया और तुर्क नेवी की बाहमी मशक का इनेकाद हुआ है। पाक बहरिया के PNS आलमगीर, असलत और मैरीटाइम लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट ने समंदर में मुश्तरका ऑपरेशंस और जंगी तदबीरों की मशक में हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये मशक तीसरी मशक है और इससे कबल 2 मशकें पाकिस्तान और तुर्की ने समुद्रों में मुनक्किद की हैं। तुर्क नेवी 2007 से अब मशकों में भी तसलसल के साथ हिस्सा ले रही है। मुश्तरका मशकों से दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। और अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ओबामा से ज्यादा मैं नोबेल इनाम का हकदार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी ने नोबेल इनाम बराक ओबामा को दे दिया, जिन्हें ये पता ही नहीं था कि एजाज क्यों दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जापानी वजीर आजम शिंजो आबे और जनूबी कोरिया के सदर मून जाए-उन ने मुझे नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। शुमाली कोरिया के साथ जौहरी मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। आज जापान में शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात के बायस अलार्म नहीं बजाए जाते। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। ईरान से बारिशों का नया सिस्टम आज रात बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जो कल मुल्क के बेशतर इलाकों तक फैल जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला जुमेरात तक बरकरार रहेगा, जिससे मालाकंड, हजारा, कोयटा डिवीजन में कहीं कहीं, जबकि कल्लात, योब समेत खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने जा रही है। मौसम की खबर दे रहे हैं आपको। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। बगरोड, कल्लात, जियारत में पारा -6 है, जबकि आपको बताएं कि लोअर दिन में मौसम बहार की आमद के साथ साथ सयाह खूबसूरत वादियों का नजारा भी करने लगे हैं। बारिशों का एक नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है, जो वक्तन फवक्तन मुल्क के बेशतर इलाकों में फैल जाएगा। लोअर दिन में मौसम बहार की आमद के साथ जहां सयाह खूबसूरत वादियों के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बेताब हैं, वहां रंग बिरंगे फूलों से माहौल को हसीन और खुशबूदार बनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद में नर्सरी फार्म्स का रुख किया। फूलों की वादी की मजीद अहवाल लोअर दिन से नवाब बादशाह की रिपोर्ट। खूबसूरत फूल मौसमी बहार को खुशमदीद कहने के लिए तैयार। नर्सरी पारमों में मुख्तलिफ किस्म के फूलों पर शहरियों की बोलियां। मौसमी बहार की आमद के साथ फूलों की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नर्सरी मालिकान का कहना है कि इन साल बारिशें ज्यादा होने से फूल और मेवेदार पौधे लगाने के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए कस्टमर बहुत ज़्यादा आती है इस नई नर्सरी फार्म, और पौधे जो है ना वो बहुत खुशी से लेते हैं और खुशी से लगाते हैं। शहरी गुलिस्तान को किस्म किस्म फूलों से मुरस्सा करने के लिए शहरी यूं बेताब हैं कि कोई कोना रंगों से खाली न रहे।
नर्सरी में आए फूल खरीदने के लिए। फूल हमने खरीदे, अभी इसको घरों में जाके लगाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और फूल बहुत अच्छे लगेंगे इस दिनों में। लोअर दीर तो वैसे भी खूबसूरत इलाका है, लेकिन दिलकश फूल इसकी हुस्न में मजीद निखार लाने का बाइस बनते हैं। मौसमी बहार शुरू होते ही लोगों ने बड़ी तादाद में नरसिपारों का रुख कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ तेमरगरा, लोअर दीर। उधर फैसलाबाद में शहरियों ने मसरूफियत का नया बहाना ढूंढ लिया। शहरियों में दिन ढलते ही ढाबों पर पहुंचकर चाय की चुस्कियां लगाने का रुझान बढ़ गया है। ऐसे मुख्तलिफ ढाबों की मंजरकशी करेंगे अरकम उस्मान। दिन भर काम काज से थके हारे लोग शाम के औकात में रुख करते हैं टी कॉर्नर्स का और वहां बैठकर गप्पे मारने के साथ साथ चाय से भी महजूज होते हैं। दोस्तों का साथ और चाय के सिप, यही वो मशगला है जो इन दिनों बेहद मकबूल हो चुका है। हम यहीं आते हैं, चाय वगैरह भी पीते हैं। चाय पीने के साथ बड़ा सुकून मिलता है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इनका चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और मौसम भी ऊपर से बहुत अच्छा है। सब दोस्त आए हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प बहस भी चलती रहती है। दोस्त कभी मजाक और कभी इधर उधर की बातों से भी दिल बहलाते हैं। दूर दूर से लोग हमारे पास चाय पीने आते हैं। हमारी चाय की स्पेशलिटी ये है कि खालिस दूध इस्तेमाल करते हैं, क्रीम, चॉकलेट। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इधर चाय एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो यहाँ से बड़े दूर दूर से लोग फैसलाबाद के मुख्तलिफ एरिया से। फैसलाबादियों की सुबह से लेकर शाम तक की थकन को चाय की एक प्याली चंद ही लम्हों में खत्म कर देती है। कैमरामैन मलिक शौकत के साथ अरकम उस्मान, नेयो, फैसलाबाद। साइकिल पर पाकिस्तान का चक्कर 186 दिन में मुकम्मल करने वाले अब्दुल रहमान पालवा ने शादी के बाद अहलिया को मोटरसाइकिल पर पूरे पाकिस्तान की सैर कराकर नया रिकॉर्ड बना डाला। दरियाए सिंध के किनारे जिंदगी का मुशाहिदा करने के बाद बलोचिस्तान की खूबसूरती ने भी मियाँ बीवी को गर्विदा बनाए रखा। रूबा उरूज की रिपोर्ट। अमन का पैगाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाने का आज़म। लाहौरी जोड़े ने शादी के महज 7 रोज बाद सामान्य सफर बांध लिया। रोजा सफर में अब्दुल रहमान पालवा और उनकी अहलिया आयशा का साथ पाकिस्तान के 3 सूबों को सैराब करने वाले शेर दरिया ने दिया। पहले मेरा अकेला ट्रैवल करने में साइकिल के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है। वो 186 डेज़ मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया था। लेकिन अब शादी हुई है तो मेरा यही इरादा है कि इंशाल्लाह वाइफ के साथ ही हर जगह पे ट्रैवल करना है। अभी रिसेंटली हम लोग बलूचिस्तान का एक ट्रिप करके आए हैं जो तकरीबन 8-9 दिन का था। अब जब बलूचिस्तान का ट्रिप करके आए हैं तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मेरे दूर हुए। अब्दुल रहमान की अहलिया आयशा के लिए पहली मर्तबा मोटरसाइकिल पर इस तवील सफर का तजर्बा किसी एडवेंचर से कम नहीं था। मोमिन के जहाँ की हद नहीं है, मोमिन का मकाम हर कहीं है। अल्लामा इकबाल के इसी शेर को सामने रखते हुए सफर के शौकीन इस जोड़े ने पाकिस्तान का कोना कोना एक्सप्लोर करने की ठान ली है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ रूबा अरूज, नीला न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में जो भी मादनियात है उनमें से ज़्यादातर बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। उन मादनियात से मुतालिक मुकम्मल मालूमात की फराहमी के लिए एक मरकज़ कायम किया गया है। जियो डेटा सेंटर के नाम से इस मरकज़ का इफ्तिताह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने किया। देखिए आज़म उल्फत की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मादनियात चागी में पाई जाती है। इसके बायस इसे मादनियात का शोकेस कहा जाता है। चागी समेत बलूचिस्तान में पाई जाने वाले मादनियात से मुतल्लिक मालूमात की फराहमी का मरकज कायम। जियो डेटा के नाम से इस मरकज का इफ्तिताह वजीर आला जाम कमाल ने किया। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि डेटा सेंटर मुल्की और बैन अवी सरमाकारों के लिए माइनिंग के शोबे में सरमाकारी के इम्कानात और माइनिंग एरिया की अलाटमेंट समेत दीगर मुतलका उमूर के बारे में रहनुमाई फराम करेगा। आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। कबूतर पालना भी एक फ़न है। इस फ़न के बाद कबूतर अपने मालिक के हर इशारे को समझते हैं। वो ना सिर्फ अपने मालिक के इशारे पर उड़ते हैं बल्कि दूसरों को कबूतरों को फंसाकर भी लाते हैं।
कबूतर का मालिक को प्यार का जवाब प्यार से। मोहम्मद अकबर जहां अपने कबूतरों से प्यार करते हैं, वहां इनके खुराक में खुश्क फ्रूट भी इस्तेमाल करता है। काजू, बादाम, अखरोट, पराठे, याद का घी, ये सारे इनको हम लोग देते हैं। खुराक के साथ इनके पैरों को सजाने का भी खास इंतजाम। कबूतर एक बेहतर रोबोट की तरह अपने मालिक के इशारों को खूब समझते हैं। उड़ने के बाद उतरने का इशारा, शिकार एक दूसरे के साथ हम लोग लड़ाते हैं, फिर वो कबूतर हम लोगों का कबूतरों में फंस जाता है, फिर इनको रगड़ा दे के फिर बिठाते हैं बाजुरा पेंका या जवारी पेंका ऊपर, बस वो खाने शुरू करता है। इस जाल से हम लोग इनको मारते हैं। कबूतर पालने वाले दूसरों के कबूतरों को पंसाते हैं, जबकि मोहम्मद अकबर दूसरे के कबूतरों का शिकार करने का इरादा करते हैं तो इसके लिए इस ट्यूब को उछालते हैं। उनको सीटी देता है, फिर जाल के साथ, अगर नहीं गया जाल के साथ, फिर ये जो ट्यूब है ना, ये हम लोग फेंकता है। फिर कबूतर समझता है कि भाई हम लोग को लड़ाने के लिए भेज रहे, उधर जाता है, लड़ाई करता है। मोहम्मद अकबर को कबूतर पालने का शौक बचपन से था। वो कहते हैं कि अगर ये शौक हो जाए तो इससे नशे की तरह जान छुड़ाना मुश्किल होता है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। गज़र में बकरी के बालों से तैयार होने वाले दीदा ज़ेब कालीन सकाफत और हुनरमंदी का खूबसूरत नमूना है। मकामी कारीगर सदियों पुराने फन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। सलीम शरीन की रिपोर्ट। ये काम इस वजह से शुरू किए हैं कि गज़र में बकरी के बालों से कालीन तैयार करने का शानदार फन। हैदर शाह भारी मशीनरी के बजाय देसी साख्ता लकड़ी की मशीन इस्तेमाल करके खूबसूरत मसनूआत तैयार करता है। हमारा मालमोशी ज़्यादा है, बैल बकरी ज़्यादा है, उनका बाल जो है इतना कीमती है, इतना महंगा है ये कि हम इसका कदर नहीं करते हैं। इसका ऐसा चीज़ बनते है, ये कितना कीमत का है। देसी साख्ता औजार से तैयार ये कालीन जितने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनमें उतनी ही चमक और दिलकशी आ जाती है। बड़ा ब्रॉड और अच्छा स्टेप है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि इनको और कामयाब करें। हुकूमती सतह पर ऐसे हुनरमंदों की हौसला अफजाई की अशद जरूरत है, क्योंकि इस तरह इलाके की सकाफत के साथ साथ लोगों को रोजगार के मौके भी मिल